Good morning students, how are you? Hope so you are well and safe at home. So today on 2nd of July in chemistry for class 11 we studied about the second unit and the topic is quantum number. Quantum number. What is quantum number? Quantum numbers are those numbers by which we can check the position, energy, orientation of an electron for any of the elements. किसी भी एलिमेंट की किसी भी इलेक्ट्रॉन की कौन सी पोजीशन है, उसकी एनर्जी क्या होगी उस लेवल पे, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, ओके, और उसका स्पिन क्या होगा, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्वांटम नंबर. सो क्वांटम नंबर बेसिकली इज फॉर इलेक्ट्रॉन. ओके, सो by the quantum number we can calculate the exact position, we can calculate the exact orientation, we can calculate the exact energy level of the electrons. Okay, so there are four types of the quantum number. First one is the principal quantum number. Second, azimuthal quantum number. Third one, magnetic quantum number, and the last one is spin quantum number. So there are four types of quantum number: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Clear? So by these quantum numbers we can calculate the four different conditions: what is the energy level, what is the orientation, what is the space, and what is spin of that quantum number. Clear? So now first of all we start from the principal quantum number. Clear? So now we have the topic is principal quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number is denoted by small n. Clear? Principal quantum number represent to shell number and represent to shell number. Clear? So principal quantum number is also represent to the shell number. What is the shell number? इलेक्ट्रॉन किस शेल पे प्रेजेंट है, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. और कौन सी एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उस एनर्जी लेवल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. हम सिंपल से वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रिंसिपल एनर्जी लेवल क्या है. क्लियर? सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रेजेंट टू द एन, ये एन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्टेशनरी स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज स्टेशनरी स्टेट. ओके, इट इज आल्सो नोन एज स्टेशनरी स्टेट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन. सो स्मॉल एन मींस 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है. सेकंड मींस इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो क्या है, दिस. तो फर्स्ट शेल में हो सकता है, सेकंड शेल में हो सकता है. इस शेल का मीनिंग क्या है, इस शेल का मीनिंग है एनर्जी लेवल. क्लियर? एंड दिस एनर्जी लेवल वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला. What is energy level? Energy level means have a fixed value. Any of shell number, any of the principal quantum number represent to the fixed value. Clear? And this fixed value is 2.16 10 to the power minus 19 minus 2.16 10 to the power minus 18 z square over n square. Clear? So this is the value of n. First, second. What is the n? n represent to the subscript for shell number. हम फर्स्ट शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम सेकंड शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, थर्ड शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं. n रिप्रेजेंट टू द शेल नंबर. हम जिस शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं उसका शेल नंबर यहाँ देखो. और z इज द एटॉमिक नंबर, जिस भी एटम के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए, लिथियम के लिए, सोडियम के लिए, जिसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर दैट वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला. ओके, द नेक्स्ट वन. Second is azimuthal quantum number.
azimuthal quantum number. What is azimuthal quantum number? First of all, azimuthal quantum number is represented by the small l. It is represented by small l. Clear? And mostly azimuthal quantum number means what is the position next to the stationary states, means जो इसकी हाई एनर्जी लेवल है उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी स्टेट्स क्या आएगी. सो azimuthal quantum number is represented to the L. L have the different values. L एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है. हम इसकी रिस्पेक्ट में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम. Okay, so we can calculate the angular momentum if we have the value of L for any of the electrons. किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमको L की वैल्यू पता है, मींस एंगुलर मोमेंटम एजिमुथल क्वांटम नंबर अगर हमें कंफर्मेशन है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं. हम इसी पे डिस्कस करेंगे अभी कि एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर. किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू डिफर करती है. क्लियर? L have 4 values 0, 1, 2 and 3. These are the 4 values. L के लिए 4 values होती है 0, 1, 2 and 3. 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक अल्फाबेट S. 1 की वैल्यू रिप्रेजेंट होती है P. सेकंड की वैल्यू रिप्रेजेंट होती है D एंड थर्ड की वैल्यू प्रेजेंट होती है F. अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर ये बेसिकली है क्या चीज़. एक्चुअल में शेल के अंदर के पोर्शंस हैं. हम एक सिंपल सा वर्ड यूज कर सकते हैं. हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम स्टडी किया था और लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअल में डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा था कि लाइमन सीरीज है, बाउमर सीरीज है. लेकिन वो लाइन अगर मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसफर कर दी जाए तो वो छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड हो जाती है, जिससे कंफर्म होता है कि जो एक एनर्जी लेवल हमको रिप्रेजेंट हो रहा था वो एनर्जी लेवल भी छोटे छोटे एनर्जी लेवल में डिफरेंशिएट हो सकता है. दैट इज नोन एज द जीमैन इफेक्ट. द वर्ड इज जीमैन इफेक्ट. जीमैन इफेक्ट मींस स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस है, जो लाइन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस हैं वो लाइंस और छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं. क्लियर? मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से सेकंड शेल में ट्रांसफर हो रहा है तो सेकंड शेल में जब वो ट्रांसफर होता है तो वो भी छोटे छोटे पैकेट्स में, मतलब एक जो लाइन जो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी वो भी बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट हो जाती है. ये वही स्प्लिट लाइंस है. मींस जो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टडी किया था जिसमें हम कंफर्मेशन करते थे केवल एक ही शेल होगा. क्लियर? वो शेल भी छोटे छोटे सब शेल्स में डिवाइडेड है. दीज आर द सब शेल्स. Clear? Actually these are subshell. Clear? So shell को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? शेल को डिवाइड कर सकते हैं हम सब शेल्स में. तो ये सब शेल्स हैं और ये सब शेल्स की वैल्यू है 4 सब शेल्स होते हैं S, P, D and F and each sub shells have the fixed value. For S there is a L 0. For D, value of L is 1. For D, value is 2. And for F, value is 4. Clear? So there are 4 values for different subshells. So there are 4 subshell S, P, D and F, or we can say there are 4 subshells 0, 1, 2 and 3. Clear? So यहाँ पे 4 subshells हैं, उनकी different energy levels हैं. अगर हमें L की वैल्यू पता है, अगर हमको S की वैल्यू पता है कि इलेक्ट्रॉन S सबशेल में, क्लियर, इलेक्ट्रॉन P सबशेल में है, इलेक्ट्रॉन D सबशेल में है, इलेक्ट्रॉन F सबशेल में. ओके, अभी हमने इससे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टडी किया था कि फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में S, P, D, F इनमें से कोई एक सबशेल हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सेकेंड सबशेल में S, P, D, F में से एक या एक से ज़्यादा सबशेल्स हो सकते हैं. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी. क्लियर? सो ये क्या है, ये सबशेल्स मतलब शेल के अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स. मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड में अगर लाइंस को एंट्री कर दी जाए तो वो लाइंस और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड की रिस्पेक्ट में. दैट इज नोन एज द जीमैन इफेक्ट. उस जीमैन इफेक्ट के थ्रू ही समझ में आया कि
एग्जैक्ट जो पोजीशन ऑफ शेल्स मान रहे थे वो शेल नहीं होती है, बल्कि शेल के अंदर एक छोटा पार्ट और होता है, दैट इज जिसकी एनर्जी अपनी डिफरेंट होती है, एक स्पेसिफाइड पोजीशन होती है, और उस स्पेसिफाइड पोजीशन को क्या कहा गया है, सब शेल्स कहा गया, जिनकी वैल्यूशन क्या है 0, 1, 2 एंड 3 या और S, P, D एंड F. क्लियर? सो दिस इज द azimuthal quantum number. So we can calculate angular momentum if we have the value of L. Okay. So how can we calculate the angular momentum? Angular momentum is equal to under L plus 1 H over 4 pi H over 2 pi. So this is the value by which we can calculate the angular momentum. L we know that 0, 1, 2 or 3. 1 H is a Planck constant and the pi. So we can easily calculate the angular momentum for an electron. किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इससे एक चीज कंफर्म होती है, इसका मीनिंग ये किसी भी शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सब शेल में है तो उन सबके एंगुलर मोमेंटम सेम होंगे. अगर S में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, D में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं ये बात करूँगा कि हर एक सब शेल में एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. S में हमेशा 2 होंगे, P में 6 आएंगे, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, F में मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर सब शेल में होंगे, क्लियर, उसमें सब में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फिक्स होगा. आप चेक करिए, एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले में L plus 1 मींस एंगुलर मोमेंटम में क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एजिमुथल क्वांटम नंबर. अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर फिक्स है, क्लियर, तो इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उस S में, उस P में या D या फिर F में, उन सबका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. एंड वी कैन कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम बाय दिस फार्मूला अंडर रूट L plus 1 H over 2 pi. Clear? Any doubt? So this is the second part of quantum number, that is azimuthal quantum number. Now we have the third value, that is magnetic quantum number. Magnetic quantum number. What is magnetic quantum number? Basically, magnetic quantum number is represented by the small m and subscript by L. ML, magnetic quantum number, because basically magnetic quantum number depend on the values of L. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L की वैल्यूज पे डिपेंड करता है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम मैग्नेटिज्म फील्ड को क्लियर कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा. मैंने मेंशन किया ML. L मींस द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ L. L की वैल्यूज पे डिपेंड करती है. कैसे डिपेंड करती है? minus L 0 plus L and 2L plus 1. Clear? See here. फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है. अभी मैंने कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक स्टेशनरी स्टेट से जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करती है. किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, हम अभी तक केवल ये मानते थे कि क्या है, जो उसकी शेल नंबर होता है. लेकिन एक्चुअल में शेल भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज नोन एज सब शेल्स, जिसको हमने क्या कहा, एजिमुथल क्वांटम नंबर से डिनोट कर सकते हैं. फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर जब डिनोट हो गया तो उसके बाद कंफर्मेशन हुआ कि सब शेल भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, और छोटी वैल्यूशन है, और छोटी एनर्जीज हैं, और छोटे पार्ट्स हैं, और छोटी स्पेसेस प्रेजेंट हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन होती है. मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो शेल के अंदर सब शेल भी नहीं है, बल्कि सब शेल के अंदर भी एक एग्जैक्ट कंडीशन है, एक एग्जैक्ट पोजीशन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. वो कैलकुलेट किससे कर रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और उनकी वैल्यूशन क्या होंगी. अगर वहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं,
सपोज करिए p सब शेल्स था, p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन सारे के सारे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी पोजीशन एक नहीं है, उन सबकी भी डिफरेंट पोजीशंस हैं, एंड दैट पोजीशंस रिप्रेजेंट बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ml। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो सब शेल है वो जो डिवाइड हुआ है, क्लियर, जो आगे जाके डिवाइड हुआ है वो क्या कहलाएगा, वो ऑर्बिटल्स कहलाएगा, दैट आर नोन एज ऑर्बिटल्स। दिस इज नॉट ऑर्बिट, ये ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट मींस शेल। हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की, मतलब सब शेल से भी एक छोटा एरिया जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट कंडीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन है, एंड दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल का डिस्कशन कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन की उस पोजीशन की बात करें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन प्रेजेंट होती है, क्लियर। सो वो ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, क्योंकि अगर पोजीशन है इसका मतलब अलग अलग पोजीशन, अलग पोजीशन की वेरिएशन क्या होगी, मैंने क्या कहा वो डिपेंड किस पे करती है, एल की वैल्यूज पे, क्लियर। कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, कितनी वैल्यूज होंगी, क्लियर। नाउ सी, सपोज इफ द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0, अगर एल की वैल्यू 0 है, इट मींस हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, व्हाट आर द वैल्यूज, द वैल्यूज आर 0 0 and 0। It means we know that there is no meaning of the minus or the plus। ना तो माइनस 0 का मीनिंग होता है ना प्लस 0 का मीनिंग होता है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 0 है, क्लियर। सो इफ L इज इक्वल टू 0 मींस इफ अगर हम S सब शेल की बात करें, किसकी बात करें, S सब शेल की बात करें, तो उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, 0 होगी, और कितनी वैल्यूएशन होगी, 2L + 1, 2 × L 0 + 1 दैट इज 1। केवल एक वैल्यू पर हम देखेंगे, एक ही वैल्यू है, वो कौन सी वैल्यू है, 0। तो S के लिए मतलब S सब शेल के लिए सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, क्लियर, और उस S उसकी वैल्यूएशन कितनी होती है, उसकी वैल्यूएशन होती है 0, और वो सिर्फ एक ऑर्बिटल है, दैट इज 1, क्लियर। इफ L इज इक्वल टू 1 मींस फॉर P सब शेल के लिए L की वैल्यू 1 होती है, कौन कौन सी वैल्यूज होगी, -1 0 एंड +1। It means 2 × 1 + 1 means 3 values। Yes, there are 3 values। तो P के लिए 3 values होती हैं। P सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। उन ऑर्बिटल्स की वैल्यूएशन क्या होंगी, उन वैल्यूएशन की एक को -1 रिप्रेजेंट किया गया, एक को 0 रिप्रेजेंट किया गया और एक को +1 रिप्रेजेंट किया गया। इन द सेम वे इफ L इज इक्वल टू 2 मींस फॉर D सब शेल के लिए कितनी वैल्यूज होंगी, 2 × 2 + 1 दैट इज 5 मींस 5 वैल्यूएशन। वो वैल्यूएशन होगी कौन कौन सी, -2 -1 0 +1 एंड +2। ये वो वैल्यूएशंस है जो D सब शेल की, मतलब D सब शेल्स जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है उनकी वैल्यूएशंस है। वैल्यूएशंस की कौन कौन सी है, -2 -1 0 +1 एंड +2। टोटल कितनी वैल्यू है, 5। तो टोटल 5 वैल्यूज किसके लिए होती है, D के लिए। इन द सेम वे L इज इक्वल टू 3 मींस फॉर F -3 -2 -1 0 +1 +2 and +3 means 2 × 3 + 1 is equal to 7 means F सब शेल के लिए टोटल वैल्यूज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी होती हैं, या ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। उनकी वैल्यूएशन क्या होती है, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, क्लियर। सो दीज आर द वैल्यूज, ये वो वैल्यूज हैं जो किसके लिए हैं, ऑर्बिटल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस के लिए, क्लियर। सो S ऑर्बिटल, S सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1। P सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। D सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। F सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7। तो दीज आर द ऑर्बिटल्स क्वांटिटी और व्हाट आर दीज आर द वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशंस है उसकी और ये उसकी क्वांटिटीज है, क्लियर। एनी डाउट। Now we have the last topic, that is spin quantum। Spin quantum number. Spin quantum number means when electron is present in the orbital, when electron is present in the exact position, that is orbital, that is magnetic quantum number, तो उसकी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, उसका इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या होगा, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। किसी भी एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 2 ही होती है, ये आप अपने माइंड को डाल दीजिए। किसी भी एक ऑर्बिटल में, और जो हम केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल को शो करने का तरीका वो हम बॉक्स में शो करते हैं, या फिर कुछ लोग उसको सर्किल में भी शो कर सकते हैं। क्लियर? सो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी शो कर रहे हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो ऑर्बिटल एम्प्टी हो, एम्प्टी होने के चांसेस है, सिंगली फील्ड होने के चांसेस है, डबल होने के चांसेस हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं करते। नंबर 1। सेकंड, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है वो या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। सो स्पिन क्वांटम रिप्रेजेंटेड बाय एस और ms, या तो s से या फिर ms से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देयर आर 2 वैल्यूज। इफ इलेक्ट्रॉन इज रोटेटेड बाय द सिंगल हैंडेड मींस क्लॉकवाइज रोटेट अगर हो रहा है, देन वी रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस हाफ और बाय दिस। या तो हम उसको ऐसे शो करेंगे या फिर हम शो करेंगे कि वैल्यूशन क्या है, प्लस हाफ। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के साथ ये बता रहे हैं कि ओरिएंटेशन क्या है, तो या तो प्लस हाफ की फॉर्म में शो करेंगे या फिर वो माइनस हाफ की फॉर्म में शो करेंगे और ऐसे शो करेंगे। ये डिनोशन है। अगर हमको कंफर्मेशन होगी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है और हम ओरिएंटेशन शो करना चाह सकते हैं, तो हम ओरिएंटेशन को या तो हम प्लस से शो करेंगे, माइनस अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम ऐसे शो करेंगे, और माइनस से शो कर रहा है मींस वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है। So in this orbital we can represent 2 electrons, one clockwise and one is anti-clockwise। जो clockwise है इसका मीन्स क्या है, वो प्लस हाफ का रिप्रेजेंटेशन है, और जो एंटी-क्लॉकवाइज है किसका रिप्रेजेंटेशन है, माइनस हाफ का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? सो दिस इज द क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर की हेल्प से हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्वांटम नंबर की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, उसका शेल नंबर क्या होगा, उसका सब शेल क्या होगा, उसका ऑर्बिटल क्या होगा, और उस ऑर्बिटल में उसकी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन अगर क्या है तो उसका फिर ओरिएंटेशन क्या होगा, वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लियर? सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू।